morning, student. So in the chapter light reflection and refraction, we near about completed the reflection part. Now in this reflection part, how the image is formed, which are the law of reflection, how the image is formed when the mirror is concave and the convex also. Okay, after that we saw the mirror formula, and that mirror formula is 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. Okay, where f is the focal length, u is the object distance, and v is the image distance. Okay, so according to that formula, some numericals we are considering here. We solve some numericals regarding to that formula, that is 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. Similarly, the magnification formula is again we have, that is u is equals to minus v upon u. V is equals to u is equals to m is equals to minus v upon u. M is nothing but the magnification. V minus v is nothing but the v is what? It is the image distance, and u is the height of the image, and u is nothing but the height of the object. Okay, now height of the image is always negative, therefore minus v upon u. So here we take one example. Okay, an object is placed 15 centimeter away from the concave mirror. अब concave mirror है तो naturally the reflecting part is like as a cave, तो ये हो गया आपका concave mirror. इसमें देखेंगे this is of your principal axis P. ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? 15 centimeter away from the concave mirror. तो this distance we have here, this is of your 15 centimeter distance. Okay, and the focal length is 5 centimeter. So this is of your f. तो ये जो डिस्टेंस दिया है आपका, ये दिया है 5 सेंटीमीटर. नाउ वी फाइंड वेयर द इमेज विल अपीयर. अब कॉनकेव मिरर में जनरली इमेज कहां पे अपीयर होती है? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के सेम साइड में मिलती है, बट इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस. We already learned about the sign convention of the concave mirror. इसको हम लोग सेंटर कंसीडर करेंगे. इसके राइट साइड में रहेगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में रहेगा तो निगेटिव, लेफ्ट साइड के लेफ्ट में रहेगा तो दैट इज अगेन पॉजिटिव, एंड दिस इज ऑफ योर नेगेटिव. ओके, सॉरी, ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेचुरली ये डिस्टेंस वी विल कंसीडर एज अ नेगेटिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन इंफॉर्मेशन. ओके, अब ये गिवन क्यों लिखते हैं हम लोग? क्योंकि गिवन से हमको क्लियर होता है कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी आर टू फाइंड. ओके, सो हियर फर्स्ट वी राइट द गिवन इंफॉर्मेशन. गिवन लिखने का एक और फायदा है कि गिवन से हमको कम से कम हाफ मार्क्स तो कवर हो ही जाते हैं. नहीं कुछ आया तो गिवन और फॉर्मूला भी लिखा तो भी हमको हाफ मार्क्स मिलने वाले हैं. तो यहां पे गिवन लिखेंगे. व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन? द ऑब्जेक्ट इज एज प्लेस्ड 15 centimeter away from the concave mirror. Means this is the object distance, and object distance is always negative because it is left on the mirror. Okay, so we will write here u is equals to minus 15 centimeter. ये दिया हुआ है. उसके बाद में क्या दिया है? फोकल लेंथ दिया है. फोकल लेंथ means the value of f. f is also negative because it is always left hand side of the mirror. f is equals to given है 5 centimeter. Now what we will find? Find where the image will form. Image will form means we will find first the image distance. Image distance हमको find out करना है P से. Okay, so we have a formula, and that formula is 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. Now we put all this value 1 upon f. f का वैल्यू दिया है -5, so we will write here -5 is equals to 1 upon v plus 1 upon -15. Okay, now this plus and minus, so plus into minus become minus, so we will get here 1 upon -5 is equals to 1 upon v
-1/15। अब ये -1/15 ये जो दिया है इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, देन व्हाट वी विल गेट हियर, वी गेट हियर 1/v इज इक्वल्स टू, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा 1/-5 प्लस 1/15, or we can write as 1/v is equals to 1/15 minus 1/5। समझ में आ रहा है? अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो एलसीएम क्या हो गया इसका, देखो 15 हो जाएगा एलसीएम, बिकॉज 5 into 3 करेंगे, इधर भी 3 करेंगे, मींस डिनोमिनेटर यदि आपको सेम करना है तो सो ये भी 15 ये भी 15, डिनोमिनेटर 15 हो गया। देन व्हाट वी विल गेट हियर 1 minus 3 into 1, what we will get 3, therefore 1/v is equals to -2/15, therefore v is equals to minus of 15/2। मैथमेटिक्स के रूल में आपको पता है न्यूमरेटर में माइनस हो या फिर डिनोमिनेटर में माइनस हो, the whole quantity is negative, therefore v is equals to -7.5। इसका मतलब ये हुआ कि v का वैल्यू जो रहेगा मींस द इमेज डिस्टेंस इज एट -7.5। अब माइनस है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में है, तो नेचुरली ये इमेज कहां रहेगा, यहां पे इमेज रहेगा, मींस इसका एग्जैक्टली हाफ, तो यहां पे इमेज बनेगा वो। गॉट इट? सो दिस इज ऑफ योर इमेज डिस्टेंस। अंडरस्टूड? नाउ दिस नेगेटिव साइन shows that it is always below the principal axis। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, it is below the principal axis, मींस यहां पे हम लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे हम लोग the image is formed at a distance of 7.5, यहां पे लिखना है हमको। ओके, I am not writing, you have to write here the image is formed left side of the mirror and below the principal axis। Now the next question is, find the position of an object which when placed in front of the concave mirror। concave mirror है तो पहले concave mirror निकाल लेता हूं मैं, यहां पर ये concave mirror निकाल लिया मैंने। ओके, this is of your principal axis P। now कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ हो गया, एफ हो गया, ये आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। ओके, प्रोड्यूस द वर्चुअल इमेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, वर्चुअल इमेज। नाउ द वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड आफ्टर द, मींस ये मिरर के बाद में, लेफ्ट में नहीं आएंगी, इमेज कहां बनेगी, इस साइड में बनेगी, इधर बनेगी इमेज, मींस ऑब्जेक्ट यदि इधर है, इस साइड में है, तो उसका इमेज बनेगा इधर, इस साइड में इमेज बनेगा। ओके, मींस राइट हैंड साइड में इमेज बनेगा। गॉट इट? अब इमेज विच इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस इमेज का जो साइज है, सॉरी हाँ, इमेज का जो साइज है, ये साइज इससे क्या है, डबल। साइज कैसा है, डबल, ट्वाइस है, मींस ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये रहेगा आपका 4 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर तो ये रहेगा आपका 12 सेंटीमीटर। गॉट इट? अंडरस्टूड? नाउ वी डोंट नो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, we don't know the position of the object, we will consider the position of the object is x। हम कंसीडर करते हैं let the position of the object means u का डिस्टेंस लेते हैं हम लोग -x। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यदि ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसका डिस्टेंस लिया हमने x, -x लिया। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, f इज इक्वल्स टू, कितना दिया है f, कितना आपके पास में, सॉरी f के पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं। अब v कितना हो रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस ट्वाइस हो रहा है, साइज इसका ट्वाइस हो रहा है, मींस ये बनेगा आपका 2x। u का हमने -x क्यों लिया, बिकॉज वी पुट द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, सो एक्चुअली वी विल कंसीडर हियर -x, वैसे हमने x कंसीडर किया उसका साइज। और v का पॉजिटिव क्यों लिया, बिकॉज इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मिरर। नाउ हियर f इज इक्वल्स टू द फोकल लेंथ दिया है, यहां पर कितना दिया है फोकल लेंथ, 20 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ दिया है ना,
The focal length is 20 centimeter. So here we will write here 20 centimeter. Now if the radius is given, you can find the focal length by using the formula f is equals to r upon 2. तो ये फॉर्मूले से हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं. हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में फोकल लेंथ न देते हुए क्या देंगे, वो रेडियस देंगे स्फेरिकल मिरर का. तो रेडियस से हमको फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट करना है, f is equals to r upon 2. गॉट इट. कैसे फाइंड आउट करेंगे, r upon 2 से. तो यहाँ पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं आया, डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी. फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. अब फोकल लेंथ कहां पे है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो नेचुरली वी विल कंसीडर -20. गॉट इट. नाउ वी हैव द इमेज मिरर फार्मूला. सो दिस इज ऑफ योर गिवन इंफॉर्मेशन. नाउ वी हैव द मिरर फार्मूला, that is 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. Okay, now we will put the value 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. Now we put the value 1 upon -20 is equals to 1 upon v. v means कितना, 2x plus of u means कितना, 1 upon -x. वैसे ही करेंगे पिछले प्रॉब्लम जैसे 1 upon -20 is equals to 1 upon 2x minus 1 upon x. तो यहां पे हमने 1 upon -20 कर लिया. इधर करता हूं मैं इस साइड में. So 1 upon -20 is equals to, यहां पर LCM आ गया 2x. ये समझ में आता है LCM कैसे करें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x हो जाएगा डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2. तो डिनोमिनेटर में 2x हो गया, ऊपर में क्या आएगा, 1 minus 1 into 2 that is of equals to 2. So 1 upon -20 is equals to -1 upon 2x. अब ये दोनों तरफ माइनस है तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो कैंसिल हो गया. 1 upon 20 is equals to 1 upon 2x. Therefore x is equals to, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग. So 2x is equals to 20. Therefore x is equals to what, 10. Got it? अब x is equals to 10 है, इसका मतलब क्या हो गया, what we have to find the position of the object. So position of the object means what, x का u का वैल्यू लिया था हमने -x लिया था. It means that the position of the object, therefore the answer is the object is at a distance of 10 centimeter from mirror. 10 centimeter from the mirror. कहां से 10 सेंटीमीटर है, वो मिरर से 10 सेंटीमीटर पे है. अब 10 सेंटीमीटर पे इसका मतलब क्या हो गया, f और p के कहीं तो भी बीच में है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ 20 है. यदि फोकल लेंथ 20 है, उसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो नेचुरली उसका इमेज जो रहेगा वो कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर. यानी कॉनकेव मिरर है आपका, ये कॉनकेव मिरर हो गया. कहां पे रखा उसको, 10 सेंटीमीटर पे. 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा. ओके, कॉनकेव मिरर. The radius is 15 centimeter. रेडियस दिया है, ये यहां पे c होना चाहिए. This is of your c. तो ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर का रेडियस है. r is equals to. Okay. Find the position, nature and magnification of the image. पोजीशन भी फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है और उसका नेचर भी फाइंड आउट करना है कि कैसी रहेंगी वो वर्चुअल रहेंगी या फिर रियल रहेंगी. That we have to find. So here the given information. First you write given information. अब given information में क्या दिया है, the object is placed 10 centimeter means u is equals to दिया है, therefore u is equals to -10 centimeter, क्योंकि लेफ्ट में है तो निगेटिव ही रहेगा. उसके बाद रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर, so r is equals to 15 सेंटीमीटर, तो r लेफ्ट हैंड साइड में है तो -15 सेंटीमीटर हो गया. तो r से हम लोग क्या निकालेंगे, f निकाल लेंगे. Therefore f is equals to r upon 2, that is -15 upon 2
means minus 7.5 centimeter. 15 upon 2 means minus 7.5 centimeter. Now we can find the value of V and the value of M also. दो चीजें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो पोजीशन फाइंड आउट करना है, इमेज का क्या पोजीशन रहेगा, और उसके बाद में उसका मैग्निफिकेशन क्या रहेगा वो फाइंड आउट करना है. ओके, सो हियर वी राइट द सॉल्यूशन एज, first of all we find the value of V by using the mirror formula. Okay, so mirror formula is 1 upon F is equals to 1 upon V plus 1 upon U. ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला. अब मिरर फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे 1 upon minus 7.5 is equals to minus 7.5 डाला, 1 upon V as it is plus of क्या मिला हमको 1 upon minus 10. Got it? अब ये minus 10 को ट्रांसफर करता हूं मैं लेफ्ट में, so 1 upon V is equals to, ये इधर आ गया तो प्लस हो गया. ओके, so 1 upon 10 minus 1 upon 7.5. Got it? ये समझ में आ रहा है. अब इसका लेंगे एलसीएम, so 1 upon V is equals to, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सी इसको यहां पे शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो आपको मिलेगा 1 upon 10 minus 10 upon 75. Got it? समझ में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है आपको. अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, so what we will get here by calculation, what we will get, see 1 upon V is equals to, got it? So 1 upon V is equals to, here we got इसमें 750, न्यूमरेटर चेक करो, न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये आएगा 750, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, या फिर इसमें 5 का भी डिवीजन कर सकते हैं आप, इजी करना है तो 5 2 are 10, 5 1 are 5, 5 5 are 25. ओके, तो ये ऐसा भी हो सकता है. तो इसमें एलसीएम कितना मिलेगा आपका 150 एलसीएम आएगा, 15 into 10 that is 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 15, 15 1s are 15 और 2 10s are 20, minus 20. So what we will get, 1 upon V is equals to minus 5 upon 150. Got it? डिवीजन पॉसिबल है यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 1 upon V is equals to 1 upon minus 1 upon 30, 5 3s are 15, so V is equals to minus 30. इतना समझ गए आप लोग. अब इतना आने के बाद में तो V का वैल्यू कितना आ गया आपका minus 30. अब V का वैल्यू यदि minus 30 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि what is the position of the image, it is minus 30, means minus 30 means कहां पे है, ये इधर आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये 15 आ गया तो ये हो जाएगा यहाँ पे minus 30 इधर. Means what we will get, the image is formed in front of the mirror. So image is formed in front of mirror. मिरर के सामने ही उसका इमेज बनेगा, बराबर. और कितने डिस्टेंस पे बनेगा, -30, मींस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और कितना डिस्टेंस पे 30 सेंटीमीटर. अब इसका रेडियस 15 है, इसका मतलब रेडियस से डबल यानी -30 इधर बनेगा. यानी ये यदि आप स्फीयर निकालते हो तो ये डायमीटर रहेगा, टोटल कंप्लीट डायमीटर रहेगा. मींस एक साइड में इमेज रहेगा तो दूसरी साइड में पोल रहेगा. ये ध्यान में आ गया. अब हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड हियर द मैग्निफिकेशन. ओके, नाउ हियर वी हैव द फार्मूला up to this one only. Means we have the formula m is equals to minus v upon u. ये फार्मूला आपके पास है. Therefore m is equals to minus of v means कितना आ गया -30 divided by u means कितना है आपके पास में, वैल्यू दिया है ऑलरेडी, u is equals to -10. So m is equals to minus of -50, minus of minus plus. So or we can consider this positive, दोनों माइनस कैंसिल किए तो -30 upon 10 -3. -3 का मतलब क्या हो गया, ये मैग्निफिकेशन -3 है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया है 3 टाइम्स बड़ा है. मींस इसका यदि हाइट 2 सेंटीमीटर का है तो उसके इमेज का हाइट कितना होगा
2 सेंटीमीटर के हिसाब से 6 सेंटीमीटर, 2 3 are 6. तो height of the image is 6 centimeter. Got it? In this way we find the value of m. Okay. Now the negative sign. अब यहाँ पे negative sign दिख रहा है आपको. Negative sign indicate that. Negative sign क्या दिख रहा है आपको लिखना है यहाँ पे, मैं अभी लिखता नहीं. Negative sign indicate that the image is virtual. Sorry, क्या है image? Inverted. Real and inverted. Real and inverted. रियल और इन्वर्टेड रहेगा इमेज, ये सबसे पहली बात. मींस नेचर कैसा है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड. हमने एक एक फाइंड आउट किया. पोजीशन कैसी है इसकी? इन फ्रंट ऑफ द मिरर 30 सेंटीमीटर पे. दूसरा क्या फाइंड आउट किया? नेचर कैसा है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड. और तीसरा हमने देखा मैग्निफिकेशन. तो नेचुरली the height of the image is more than the height of the object. So you will solve all the 3 examples, and again we can solve the example which I provide you.